Honorable Chief Guest, respected Principal, ladies and gentlemen, and my fellow Abdalians, Assalamu Alaikum. It is indeed an honor for us to have Vice Admiral Retired Ahmed Saeed, Lal-e-Imtiaz Military, a distinguished naval officer, an accomplished leader, and a visionary strategist who has devoted over 4 decades of his life in the services of Pakistan Navy and the nation. He joined Pakistan Navy in 1981 and was subsequently granted a commission in Operations Branch in 1985. He volunteered to join the submarine force and specialized in underwater warfare from France. During his long association with the Navy, he served on various command and staff appointments, to include Command of Submarine Khalid, Commander Submarine Squadron, Captain Training Subsurface to Flag Officer Sea Training, and Director Submarine Operations at NHQ. As head of mission in France, he supervised the Agosta 90B acquisition project for 2 years. He performed the duties of ACNS, Director General, Chief Project Director for Chinese Submarine Acquisition, Deputy Chief of Naval Staff Project 2, and Chief of Staff to CNS as well. He is a graduate of PNWC, National Defense University, Command and Staff College, China. In recognition of his meritorious services, he was conferred upon Tamgha-e-Imtiaz Military, Sitara-e-Imtiaz Military, and Hilal-e-Imtiaz Military. He is an avid golfer and badminton player and has co-authored 2 books. At present, he is serving as the President of National Institute of Maritime Affairs. Ladies and gentlemen, please join me in formally welcoming the guest of honor. Before inviting the chief guest, a video about National Institute of Maritime Affairs shall be played. To exclusively focus on maritime affairs, a think tank was established in 2006 under the Prime Minister's directives as the Institute of Maritime Affairs. Later, it was upgraded to the National Institute of Maritime Affairs, commonly known as NIMA. NIMA operates with its 2 chapters in Islamabad and Karachi while maintaining its head office in Islamabad. In line with its vision and mission, NIMA undertakes impactful research and consultation projects to provide sustainable solutions covering over 40 maritime-related sectors. NIMA has been admitted as co-opted member of the Advisory Board of National Security Committee to provide policy-level input. It serves in advisory capacity with Indian Ocean Tuna Commission, and additionally, NIMA is on advisory panel of various governmental and non-governmental entities. NIMA collaborates closely with federal and provincial governments, including maritime stakeholders like the National Security Division, Naval Headquarters, Pakistan Naval War College, various ministries, universities, think tank, and international institutes. NIMA's quality product include policy-level input, research reports, consultancy, advocacy, networking and outreach, and capacity building. With its resolute passion, NIMA's team is committed to lead the way in global maritime arena, setting new standards aligned with the best practices to achieve a common goal of secure seas and prosperous future. Now I would like to request the Honorable Vice Admiral to kindly address the gathering. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Very Honorable Principal Sir, the faculty members, and very dear cadets, Assalamu Alaikum and very good afternoon. Indeed, it's a great pleasure for me to be here today with you. One of the first cadet college of Pakistan, where mashallah it has produced a lot of leadership not only for Pakistan and for the defense forces, but around the globe I see a lot of people are performing mashallah good work. So when I was looking forward to come here and say a few words to you and share my ideas on certain issues, so I was wondering that
all of you are senior to me. Why? Because Khalil Gibran said that a person who borns after you is even one day he is senior to you one day, in terms of the knowledge, in terms of the capacity, in terms of his intellectual level. So when I see you people, you are mashallah, if I am 60 then you are around 45 years senior to me in terms of your knowledge, your background. So I'll try to make it that gap. So this is actually the generation gap. When we talk of what is the generation gap, this is the generation gap where the seniors like me, they will have to catch up with the senior lot, which is the cadets. So today my aim is twofold in a way, to make you acquaint about what is the blue economy, its potential, and how important it is for the survival of our planet, and how valuable it is for our economy. Second is, as a human being, what is our responsibility? Why? Because तो अल्लाह हैज़ एक्चुअली हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो जब अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो उसके लिए एक बड़ा क्राइटेरिया भी है, और उस क्राइटेरिया के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आउटलाइन कर दी गई है। तो जब हम कहते हैं कि हमारा दीन है, तो दीन तो पूरी हर चीज़ के ऊपर हावी है, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर भी। तो इसलिए ब्लू इकॉनमी जब हम लेके आएंगे इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे आगे चल के। तो आई लेट यू नो दैट हाउ इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू आवर कोड ऑफ कंडक्ट, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ दैट व्हाटएवर वी डू ऑन लैंड, how important it is for the health of our oceans. And once we say health of our ocean, so how important it gets back for the health of our people on land. Whatever is happening today, I think it's not an act of God. Think over it. It is the choices which we made yesterday. तो जो आज फ्लड्स आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली हमारा अपना ही कुछ फैसले हैं जिन्होंने हमें इस लेवल तक पहुंचा दिया। उसमें कुछ इंडिविजुअल भी हैं और कुछ कलेक्टिव है, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट सर्टन इश्यूज, पॉइंट्स विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस वेरी लेवल। कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि कल की जो leadership है that is sitting before me now, if they understand the gravity of the situation, तो उससे मेरा ख्याल है मेरा मकसद आज के आने का पूरा हो जाएगा। Let's get started with it कि थोड़ा सा ओशंस और सी के बारे में बात करेंगे, because if I am from the Navy तो ज़ाहिर है it has to be talked about. Then we talk about the blue economy, then sectoral analysis of Pakistan maritime economy, उसका हम connection बीच में बताएंगे। उसके बाद when we have some food for thought, and finally some questions. So coming to the significance of oceans, we drive our idea from the Holy Quran. So when we see at how much times the word sea, it has appeared, it is 32 times in Quran, and 13 times is land. जब आप इसकी परसेंटेज निकालें, so it comes out to be 71.1% is the sea and 28.89 is the land. And that is exactly the percentage of sea and land, which is the balance of how it has been mentioned in the Quran. और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब there's a new kid is born, तो उसकी बॉडी का रेशो with respect to water and rest is again 70 and 30%. So that's how it is so important for human being survival.
So once we talk about the maritime economy, so just to give you an idea that global sea trade is about 80 to 90% because this is the most economical way of transporting the goods. तो ये सबसे महंगा जो है वो ज़ाहिर बात है एक आपका बाई एयर है, नेक्स्ट इज़ बाय ट्रेन एंड नेक्स्ट इज़ बाय सी, इन बिटवीन इज समवेयर बाय रोड एज वेल. तो सबसे जो सस्ता है, तो दैट इज़ द रीज़न जो मेन इकोनॉमी की बैकबोन है, दैट इज़ योर बाय सी. रेस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स यू कैन सी. मोर इम्पॉर्टेंट इज़ towards the lower right side that it absorbs 25% of your carbon, जिसको process को कहते हैं carbon sequestration, and next is about 90% of the excess heat is absorbed by the seas. Now you may be well aware of that because of ग्लोबल वार्मिंग सी का जो एक तो राइज हो रहा है लेवल और एक टेम्परेचर भी राइज हो रहा है. और द बेंचमार्क दे हैव स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम दैट इज़ द इंडस्ट्रियल एरा. तो तकरीबन 120 साल हो गए. तो 120 साल के अंदर इस वक्त 1.5 डिग्री टेम्परेचर राइज कर चुका है और तकरीबन 8 इंच के बराबर सी राइज कर गया. उसका एक इंडिकेटर ये जो कराची से कोई ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे बच्चे कैडेट्स हैं, एनीबडी फ्रॉम कराची, यू मस्ट बी नोइंग इन कराची द ड्रेनेज सिस्टम विच दे हैड बिल्ड प्री पार्टीशन, इट इज़ स्टिल देयर. Whenever there used to be rain, the water used to get drained. But now because of the rise in sea level, there is a back pressure. And that is the reason earlier on there never used to be flooding in DHA at least. And for the last about 10-15 years, there is a flooding phenomena in DHA. For the very reason because sea level have started rising now. So you will have to redefine your drainages again according to the new sea levels. तो ये एक उसका offshoot है. Once we talk about the economy, तो roughly आइडियली इट शुड बी 10% ऑफ द टोटल जो आपकी इकॉनमी है उसके बराबर आपकी मैरीटाइम इकॉनमी होनी चाहिए. एक डेवलप्ड कंट्री की तो इससे ज़्यादा है, इट शुड बी अराउंड 15 to 20. बट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मैरीटाइम है उनकी तकरीबन 10% होती है. तो ये अभी अगर हमारी ओवर 400 बिलियन है तो दिस शुड बी अराउंड how much? 40. Whereas हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? 6 billion पे. So that means we are not doing the business the way the developing countries, other developing countries are doing, जिनके के आपकी इकोनॉमीज़ कहाँ से कहाँ चली गई हैं. So that's the one indicator for you कि जब तक आप ब्लू इकॉनमी को अपनी नेशनल इकॉनमी का पार्ट नहीं बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम रहेगा. ठीक है. अब एक जोग्राफिकल लोकेशन कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह पे लोकेट हुआ हुआ, लेकिन इस लोकेशन को जब तक आप इनकैश नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी जगह पे है कि तकरीबन इस जगह पे, दिस इज़ समवेयर पाकिस्तानी, बाकी नीचे इंडिया कहेंगे, दिस इज़ द गल्फ. तो गल्फ़ के बिल्कुल दहाने के ऊपर है. ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यहाँ पे सारा आपका ऑयल है
और इस साइड पे आपका जितना कंज्यूमर है वो है अफ्रीका है, यहाँ पे आपका जो मार्केट है बड़ी यूरोप की वो है, और इस एरिया में चाइना है, इंडिया है, ये बाकी सारी कंट्रीज जो प्रोड्यूसर हैं। तो दिस इज़ द फिगर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे कि जस्ट टू हाईलाइट कि कितना हाफ अ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है जस्ट आपके सामने से। 1/3 इज़ ए बल्क कार्गो, ये 2/3 आपका जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट है वो सारी यहाँ से होती है। तो इस इम्पॉर्टेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने साहिल के ऊपर वो सारी चीज़ें करें, पोर्ट्स ज़्यादा बनाएं, और साथ ही साथ आप शिप्स की कंस्ट्रक्शन के लिए आप बहुत सारे यार्ड बनाएं। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास एक पोर्ट थी, हमने कितने साल हो गए, 78 years, because we just had our Independence Day। तो 78 years में हमने एक और पोर्ट बना ली, जो क्या कौन सी वाली है, पोर्ट कासिम, ठीक है। और गवादर को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पोर्ट बन जाए। अब इसको कंपेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश हमसे कब सेपरेट हुआ, और अब उनके पास 34 पोर्ट्स हैं। इसी तरह शिप्स की जब हम बात करते हैं तो जब हमारा 76 तक हमारे पास तकरीबन 72 या 73 शिप्स थे, मर्चेंट शिप, और उस वक्त हमारा सबसे बड़ा फ्लीट था रीजन का। आज हमारे पास 12 शिप्स हैं और बांग्लादेश के पास 400 से ऊपर शिप्स हैं। तो कहीं गलती हो रही है ना हमारी पॉलिसीज़ में, हमारी सोच में, हमारी समझ में कहीं मसाइल हैं। तो जस्ट टू हाईलाइट यू कि ये चीज़ें हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी और बहुत जल्द हमें करना है। तो इस पर आपको आगे बताएंगे हम क्या कर रहे हैं और हमारा इदारा इसमें कैसे काम कर रहा है। ये जो मैंने आपके डायग्राम के ऊपर जो एक्सप्लेन किया, एक्चुअली लिंचपिन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लिंचपिन? जी तकरीबन ठीक है। जो दो चेन्स हैं ना, उनको जब आप जोड़ा जाता है, एंकर की जो चेन्स हैं वो मुख्तलिफ उसमें साइजेस में आती हैं, उनको जब जोड़ते हैं तो उसके अंदर एक स्पेशल, एक चेन के अंदर एक हुक लगाया जाता है जो उनको जॉइन करता है, उसके अंदर एक पिन लगती है जो उनको जोड़ती है, तो उसको कहा जाता है लिंच पिन। दैट मीन्स यू आर जॉइनिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पाकिस्तान की जो लोकेशन है ये लिंच पिन है इन अ वे के बहुत सारे एरियाज़ को ये जोड़ रही है। तो अब उसको अगर हम अच्छे तरीके से उसको हम समझ लें तो इसकी जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवर में। और जो हम बात करते हैं कि 2035 में हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी, ज़रूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, हमें उससे ऊपर जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हमें आज से सोच के साथ भी चलना पड़ेगा ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि इतने $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी तो 10% अगर उसमें मैरीटाइम सेक्टर का रोल होगा तो दैट मीन्स 100 बिलियन होना चाहिए। तो खड़े हम कहाँ पे हैं, 6 बिलियन पे। देयर इज ए ह्यूज गैप। तो उस गैप के लिए पॉलिसीज़ बना के आगे चलना बड़ा ज़रूरी होगा। पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, और साथ ही साथ अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं किए और लीडरशिप, जैसे आप माशाल्लाह आज बैठे हुए हैं, तो इस लीडरशिप के लिए मेरा ये इसी तरीके से एक आगाही भी है आप लोगों के लिए कि दिस इज़ वेयर वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। व्हेन एवर इन योर लाइफ यू बिकम अ डिसीजन मेकर, डू लुक इन टू दीज काइंड ऑफ गैप्स और उनको फिर फिलअप करने की कोशिश करें, ठीक है। ये फेमिलियर है आपके लिए कि पाकिस्तान जो है वो, इसको हम पाकिस्तान का एक सूबा कहते हैं, इट्स अ पाकिस्तान प्रोविंस।
तो तकरीबन 1000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट है, 240,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और साथ में नीचे हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 50,000 का। मतलब ये कि जो इसकी अंडर सी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन का पहला कंट्री है जिसने ये एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्लेम किया और उसे मिल भी गया। ये तकरीबन 5 साल की मेहनत है जिसमें पाकिस्तान नेवी और हमारे बहुत सारे और इदारों ने काम किया। तो 2011 में इसका क्लेम किया और 2016 में एक हमारा हो गया। बाकी कंट्रीज़ अभी तक ये कर रहे हैं। तो कहने की बात ये थी कि इसका जो टोटल रकबा है दैट इज़ 290,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ bigger than which province and lesser than which province? Sorry? Exactly. Very good. तो ये हमारा सूबा जो ना सेकंड इन नंबर है रकबे के लिहाज से, तो हमें इसको इज़्ज़त देनी पड़ेगी। इसके जो बासी हैं वो सारे हमारी तरफ देखते हैं, ठीक है। जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि हमारी गवर्नेंस का कुछ बंदोबस्त करें। तो इसमें जो गवर्नेंस के हमारे पास जो फोर्सेस हैं जो कर रही हैं वो उसमें इज़ वेरी वेल नोन टू यू। पाकिस्तान नेवी टेक्स द लीड, उसके बाद पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, पोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पाक मरीन्स हैं। ये तमाम इदारे हैं जो कि सी के ऊपर एक अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने अपने तरीके पे काम कर रहे हैं। इसमें अगर कोई सवाल होगा तो फिर बाद में इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं ब्लू इकॉनमी की तरफ। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ब्लू इकॉनमी। अच्छा, ब्लू इकॉनमी और मैरीटाइम इकॉनमी में फ़र्क है, और वो फ़र्क तकरीबन ये है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा में जैसे हम वसाइल का इस्तेमाल बेदरेक कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो नुकसान होना शुरू हुआ प्लैनेट को, उसके लिए फिर कुछ सोच विचार शुरू हुई कि ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। तो उसके ऊपर जो लेटेस्ट चीज़ है वो तो खैर मैं आपको थोड़ी सी बाद में बताऊंगा, लेकिन उसको कनेक्ट अप करते हैं हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ भी। तो हर मज़हब में वसाइल के इस्तेमाल के ऊपर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट डू नॉट वेस्ट योर रिसोर्सेज। सो इसमें होली प्रॉफिट की आई वुड लाइक टू कोट दैट डू नॉट वेस्ट द वाटर इवन इफ यू परफॉर्म अब्लूशन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। अब दरिया के किनारे बैठ के भी अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो डोंट थिंक दैट यू हैव द सर्टिफिकेट to use the water as you wish. No, ये उसकी बेसिक क्रक्स है। तो इसी तरीके से हुज़ूर पाक की एक और जो बैटल ऑफ बदर में है कि उन्होंने ये बात की कि जब वहाँ पे सहाबा किराम ने कहा कि जो लोअर साइड पे दरख्त हैं उनको हम काट देते हैं ताकि वो जब दुश्मन आएगा तो अपोजिंग फोर्स आएगी तो वो सारी सामने नज़र आएगी। तो हुज़ूर पाक ने इसको मना फरमाया, उन्होंने कहा नहीं, ये भी जानदार हैं, इनको ना काटें, ठीक है। तो दैट इज़ दिस लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेचर एंड टुवर्ड्स योर दिस कम्स इन टू प्ले। तो जो लेटेस्ट अभी वो तो एक रिलीजियस आपको थोड़ा सा मैंने बता दी, लेकिन इसके साथ साथ जो 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे लोगों ने मिल बैठ के ये सोचा कि ये जो हम आज कर रहे हैं ये आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वसाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस वक्त सोच विचार शुरू की। तो उसके साथ साथ फिर चलते चलते ये रियो कॉन्फ्रेंस हैं जो बाद में आपने देखा कि 2 दफ़ा हुई है, 92 में हुई और उसके बाद Rio+20 के नाम से जो एग्जैक्टली ब्लू इकॉनमी पे हुई। तो वहाँ पे इसके मेजर कार्डिनल पॉइंट्स जो है ना वो डिफ़ाइन होना शुरू हो गए।
फिर पेरिस एग्रीमेंट में जो मेन चीज़ सामने आई वो यही थी कि बाय 2030 वी हैव टू स्टॉप दिस राइज इन टेम्परेचर जो हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। वाई? बिकॉज इट इज़ इफेक्टिंग योर सी, और सी इज़ ए गारंटर ऑफ योर लैंड। तो ये पूरा एक सर्कल जो है ये आपको तबाही की तरफ ले जाएगा। दैट्स हाउ देन दे स्टार्टेड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक गोल जो है लाइफ बिलो वाटर, दैट इज़ SDG 14, जिस पे नीमा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एडवाइजरी कैपेसिटी में काम करता है। ठीक है जी। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की बहुत बड़ा एक गेज बना दिया गया। अब आपको फंडिंग जितनी है बैंक से या जो लोन मिलेंगे वो सिर्फ इस चीज़ पे मिलेंगे कि अगर आपने वो प्रोजेक्ट अपने ज़मीन पे लगा रहे हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस या समंदर पे पोल्यूशन या ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो आपको मिलेगा, अपना पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ योर एनवायरनमेंट इन विच यू विल बी वर्किंग। ठीक है। अच्छा, इसके पास ये 3 पिलर्स मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट वन इज़ टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, सेकेंड इज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जो कहते हैं ना कि अगर आज आप आम खा रहे हैं तो ये किसी ने पौधा तो लगाया होगा, तो इसीलिए आपका काम भी है कि और पौधे लगाएं ताकि आने वाली जनरेशन के लिए ये साइकिल चलता रहे। ठीक है। तो इसी तरीके से ओवरऑल जो ग्लोब का कॉन्सेप्ट है उसकी कंजर्वेशन का वो तकरीबन यही है। सेकंड इज़ कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम। अब उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप वसाइल की पहले बेंचमार्किंग करें। अगर फ़िश आपकी नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है एक साल के अंदर, एग्स के बाद उसके लार्वाज और उसके जो सिलसिला चलता है, वो अगर 400 मीट्रिक टन है तो आपको 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप लेंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब करेंगे। दैट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटेंट हो जाएगी और आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वो इसके बारे में। लास्ट वन इज़ दी सोशल इक्विटी टू इम्प्रूव दी लाइवलीहुड एंड दी वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटीज़। दैट मीन्स कि जब आप इससे जो प्रॉफिट लेंगे वो आप वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इससे सिर्फ ये जाहिर करना था कि ब्लू इकॉनमी जो है, या इसको जब लैंड पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लैंड पे इस्तेमाल करें तो ग्रीन इकॉनमी। ये तो ब्लू और ग्रीन इकॉनमी जो है ना दोनों बहन भाई है। ठीक है। तो अगर लैंड पे होगा तो वो ग्रीन इकॉनमी, अदरवाइज इट्स अ ब्लू इकॉनमी। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही है। अब जैसे हमारी लेजिस्लेशन, सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे पास तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने पहली चीज़ जो ऑब्जेक्ट की, उन्होंने कहा कि आप प्लास्टिक बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के लिए। एंड देन ये आज के आपको पता है कि एक बॉटल जो प्लास्टिक की जब आप फेंक देंगे तो कितने अरसे बाद ये डीजनरेट होगी, मिनिमम 800 साल। तो 800 साल तक ये डीजनरेट नहीं होती। और जब ये डीजनरेट होती है माइक्रोप्लास्टिक्स में, तो 2 बड़े प्रॉब्लम। अगर तो ये सी में चली गई तो ये जो फिश भी इसको खाएगी वो आपकी प्लेट में वापस आएगी और वो पॉइजन आपकी बॉडी में। और अगर आपने इसको लैंडफिल में डाल दिया, डीजनरेट होगी, तो इसका जो पॉइजन है वो आपकी जो भी उससे अनाज आता है या रिसोर्सेज आएंगे वो उसके लिए आपका प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वो चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए जो एनवायरमेंटली जब डीजनरेट होती हैं तो उनका प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। ये थोड़ी सी कंजस्टेड एक स्लाइड है, लेकिन जस्ट इसको मैं थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी मुल्क होता है उसने अपना एक नेशनल पर्पस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं। हर मुल्क के अपने, जैसे हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है।
बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, फिर नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं। तो जो पॉलिसीज़ हैं वो तकरीबन इस तरह होती हैं, जैसे इसके अंदर एक मैरीटाइम पॉलिसी है, मैरीटाइम पॉलिसी के नीचे फिर मैरीटाइम स्ट्रेटजी है, और जहाँ पे चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ जो एडवाइज़र होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, फिर ये नेवल स्ट्रेटजी, और ये नीचे जो ब्लू इकॉनमी है, ये सेक्टर्स हैं, ये सारे मिल के हमारी मैरीटाइम इकॉनमी बनाते हैं। और ये मैरीटाइम इकॉनमी जो है नेशनल इकॉनमी और उसके साथ फिर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि अभी जो पहले सोचा जाता था कि सिर्फ फ़ौज जो है वो मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, अब उसके साथ इससे ऊपर चला गया है इकॉनमी। तो अगर आपकी इकॉनमी मजबूत नहीं है तो आपकी सॉवरेनिटी का इशू, आपकी सिक्योरिटी का इशू और आपके बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो हर उस शख्स के जेब में जिसमें पैसा है उसकी इंडिपेंडेंस भी होती है, ठीक है, और उसकी इज्जत भी होती है। तो इसके लिए मैरीटाइम इकॉनमी जो है ये बहुत बड़ा एक एवेन्यू है, जो अगर इसको हम टैप कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि ऐसा एवेन्यू है जिससे कि जो हमारे मसाइल हैं इकॉनमी के वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 40 के करीब सेक्टर्स हैं जो ब्लू इकॉनमी के साथ मुंसलिक हैं, और इनके ऊपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स बहुत सारी रिसर्च करता है। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा गिव यू दी, और इनको ग्रुप किया गया है हमने तकरीबन 6 सेक्टर्स में, और हर एक के नीचे डेस्क्स हैं जो इस पे काम करते हैं। और मैं इसमें डिटेल में इतना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि आपको कुछ पैम्फलेट्स हैं जो आपको हम दे देंगे, विच विल बी अवेलेबल इन योर लाइब्रेरीज, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गो थ्रू इट। और उसके बाद ये बाकी ये इनको मिला के तकरीबन 40 के करीब सेक्टर्स हैं जिन पे काम होता है, ठीक है जी। और जस्ट थोड़ा सा आपको पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में बता दूं कि जैसे मैंने शिप्स का ऑलरेडी आई टॉक टू यू कि हमारे पास तकरीबन 12 शिप्स हैं। अब हमारी जो टोटल इकॉनमी, जैसे कहा कि सबसे ज़्यादा सी पे होती है, तो सी के ऊपर इकॉनमी को टोटल जो सी ट्रेड है वो तकरीबन हमारी 80 और 90 बिलियन डॉलर है, और उसको लिफ्ट करने के लिए जो हमें किराया देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अपने शिप्स नहीं है, तो 6 से 7 बिलियन हमारा ज़ाया हो जाता है। ये ऐसे ही जैसे कि अगर आपके पास गाड़ी है और आपने रोड तक जाना है, तो उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो अगर आपके पास 30 रुपये बनता है, और आप अगर फ़ोन करके ऊबर बुलाएंगे तो ऊबर कितने की आएगी? 150 या 200 की आएगी। सो 3 to 4 टाइम हायर हम पे कर रहे हैं। तो इसलिए शिप्स का होना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। इसके ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर ये शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, जो तकरीबन 30% ऑफ जो आपका रॉ मटेरियल है मुख्तलिफ ये पंखों की इंडस्ट्री और ये सब के लिए प्रोवाइड करती थी। इस वक्त वो भी प्रॉब्लम में आ गई है। तो अब जहाँ पे तकरीबन 400 से 450 शिप्स पर ईयर आते थे, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 12-13 शिप्स हैं जो स्क्रैप के लिए आ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया, मेनली बिकॉज कि पॉलिसीज़ हमने उस तरह नहीं बनाई कि जो इसको इंसेंटिवाइज करती। अब इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है वो शिप रिसाइकलिंग हमसे ज़्यादा हो चुकी है। बहरहाल इस पर भी काम हो रहा है अभी, इंशाल्लाह आई बिलीव कि ये भी बेहतर हो जाएगा। फिशरी के बारे में जैसे ये तकरीबन इसका पोटेंशियल 5 से 6 बिलियन का है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 0.5 है, इसलिए कि इसमें इलीगल फिशिंग बहुत हो रही है। हमारा स्टॉक काफ़ी डिप्लीट हो गया। देखें, अगर हमने वो डाटा कलेक्ट नहीं किया अगर किया होता तो वी वुड हैव सेट कि इससे ज़्यादा हम नहीं पकड़ेंगे। तो उसकी वजह से हमने ओवर फिशिंग की और आज हम इस हाल में पहुँच गए। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू है जो कि इस एक्वाकल्चर क्या चीज़ है। फिशरी तो वो है जो आप सी से कर रहे हैं,
एक्वाकल्चर वो है जो आप खुद करते हैं लैंड के ऊपर, या केज फार्मिंग कर रहे हैं, या आपने झीलें बना के उसके अंदर आप फिश का या श्रिम्प्स का फार्मिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्वाकल्चर। इस वक्त एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट वर्ल्ड में 60% हो गई है और बाकी 40% इज़ फ्रॉम फिशरीज़। हमारे यहाँ ये रिवर्स चल रहा है। इस इक्वेशन को भी हमने रिवर्स करना है। इसमें बड़ी खूबसूरत एक बात ये है कि हमारी, जैसे मैंने कहा था कि 21% ऑफ लैंड इज सलाइन, जिसको कहते हैं ना सेम थोर वाली है, उसमें कुछ हो तो सकता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये फिश और श्रिम्प फार्मिंग बड़ी अच्छे तरीके से की जा सकती है, और जो कि साउथ ऑफ पंजाब में भी स्टार्ट हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसके अंदर अभी काम हो रहा है, तो आई एम प्रीटी होपफुल इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी पिक करेगा। फिर टूरिज़्म का हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस वक्त जो भी टूरिज़्म है सी की तरफ नहीं है, लैंड की तरफ है। ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी जैसे तकरीबन टूरिज़्म की जो है मैरीटाइम इकॉनमी का जो टर्नओवर है तकरीबन 1 ट्रिलियन प्लस थोड़ा सा बनता है, तो उसका 10% इज़ फ्रॉम द टूरिज़्म। वर्ल्ड ओवर टूरिज़्म 10% ऑफ द टोटल मैरीटाइम इंडस्ट्री है, जबकि पाकिस्तान में नेग्लिजिबल। तो इसको भी हमें आगे लेके आना पड़ेगा और उसमें जो इम्पेडिमेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको टच की। बाकी ये पॉलिसी नीमा जो काम करता है, हम लोग पॉलिसी लेवल में हम लोग इनपुट देते हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पब्लिकेशंस हैं, एडवोकेसी, नेटवर्किंग, आउटरीच है, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं, और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग है। दिस इज़ आवर पॉलिसी लेवल इनपुट्स। जैसे जो पॉलिटिक्स पे इशू पे, ब्लू इकॉनमी, क्लाइमेट चेंज, मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉ एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारा काफ़ी काम चल रहा है। ये हमारे कुछ पब्लिकेशंस हैं। वी शैल बी गिविंग यू द कॉपी फॉर योर लाइब्रेरी इंशाल्लाह, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये इसी तरीके से ये हमारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है। ये नॉर्वे के साथ हमने प्रोजेक्ट किया, ये रेड क्रॉस के साथ है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नीमा इज डूइंग एट द मोमेंट। दीज आर दी नीमा periodicals। ये हमारा वाई कैटेगरी का पोलैरिस है, जो कि भी एक्स कैटेगरी में इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैरीटाइम वॉच है ये बाकी। सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड इज some food for thought. That is, to guard sea frontiers, embrace blue economy and develop climate resilience ecosystem, it is imperative to improve the governance system at sea. जो सी का प्रोविंस है उसमें गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कहा कि सीज एंड ओशंस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, देयरफॉर इट इज prime responsibility of all to conserve marine resources for future generation. Maritime component has been branded as the backbone of the global economy, and therefore it is to be treated as the critical component of national security. जब तक हम इसको national security की नज़र से नहीं देखेंगे, इसमें वो जो improvements हैं वो शायद हम उस तरह ना कर सकें। ठीक है जी। और पाकिस्तान हैज़ बीन बिस्टोर्ड विद मोर देन, आपको मैंने बताया, 100 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन प्लस 290,000 ऑफ आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्लस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दिस एरिया नीड्स टू बी ट्रीटेड एज सी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि बाकी कंट्रीज़ ने इसको ऐसे ही किया हुआ। So Pakistan policymaker needs to understand the critical contribution of maritime sector in the national economy and its linkage with the overall national security. So last word is blue economy is the future of Pakistan. So that is my punchline for you people to develop on। आगे इस पर रिसर्च करें और देखें कि जो मुल्क हमसे आगे निकल गए तो वो उन्होंने क्या किया। So this is where I learned, and I'll be happy to answer if there are any questions.
name and your entry, please. Once you ask the questions. So which is the first drop of water? Ji, please. My name is Mohammad Anas Shah from class 12. Sir, my name is Mohammad Anas Shah from class 12 and I'm from Chinawi. Sir, my question is that we do know that the area of our water is 290 square kilometer, but can we know that how it is decided? Like 1,000 kilometer long is our coastline, but how do we know that how further we go in the sea and our territory is till then? So how does the territories of the countries are decided? Thank you, very good question. In a way that land पे that we can decide about the pillars where they mark the territory, but at sea we don't have this kind of thing. That is on the electronic charts. So that is where they have already marked. So we have the electronic charts issued by the International Maritime Organization (IMO) from the UN side. So they have a subset of hydrographic department from where they send those charts. Those are called the Admiralty charts. तो वो उस Admiralty charts के ऊपर सब areas mark हुए हैं. और how you define that this is your territory, एक तो ये है, and second is the certain ground rules have been set under the United Nations Convention on Law of the Sea 1982. That defines that how far you can go from your coast और extended continental shelf को कैसे आपने claim करना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें उसके एक मरबूत निज़ाम के तहत आप claim because उसके तहत की जाती हैं. So there is a territorial water which is 12 nautical mile, which is actually part of your land. That means within that your laws will be applicable. Then there is a contiguous land 12 nautical miles, that means 24 nautical miles from your coast. So that is where your customary laws they come into play. और उससे आगे फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसमें कि पैसेज तो हो सकता है लेकिन उस एरिया की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती. दैट दे कैन नॉट यूज़ दी बायोडाइवर्सिटी, दैट दे कैन नॉट डू द फिशिंग इन दैट एरिया, ठीक है. और जब आप उससे आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में चले जाते हैं तो वहाँ पे दे कैन डू द फिशिंग बट दे कैन नॉट डू द माइनिंग. माइनिंग के लिए दे विल हैव टू get the permission from Pakistan. So subsoil resources of extended continental shelf is the sovereignty of that country which has claimed, ठीक है. तो ये है उसका छोटा सा बैकग्राउंड. एक लास्ट में पहले किसी ने वहाँ से सवाल किया था. जी बेटा पहले आप बात कीजिएगा. आई एम सॉरी, आई कम द वे यू पीपल आर रेजिंग हैंड. Assalamu alaikum, sir. My name is Mohammad Haseeb and I am from Hyderabad first year. Sir, you have mentioned earlier in your speech that Bangladesh is way much ahead of us in regard of ports and ships. So what are those policies which are making us lacking behind which are making us lacking behind as compared to Bangladesh, sir? And what do you suggest in change in policies due to which we can improve in our maritime things? पहली चीज़ तो ये है कि they say that the eyes are open and mind is blind, that means nothing will move. So हमारे पास थोड़ा सा एक political will और national awareness का एक problem है. पहली सबसे बात तो ये है कि none of the political party has in their agenda how to develop the मैरिटाइम सेक्टर. दे विल ऑलवेज हैव समथिंग. इतने स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ रोड्स बनाएंगे, ये करेंगे, इतनी गंदम पैदा करेंगे, सब कुछ. लेकिन अभी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ ओवर पावरिंग जो है लैंड के ऊपर आबादी बढ़ गई है. सो वट एवर वॉज आर पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें कि पाकिस्तान के जब
1947 में, पहला सेंसस हुआ 1951 में, और अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है इसके दरमियान हमारी आबादी जस्ट गेस कितनी बढ़ गई है? कितने टाइम्स बढ़ी है? 8 टाइम्स। जबकि इसके पैरेलल दुनिया की आबादी जो है सिर्फ 4 गुना बढ़ी है। तो जब इतने ज़्यादा नफूस हो जाएंगे, आबादी इतनी बढ़ेगी, तो वसाइल का इस्तेमाल लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसी वजह से आप लोग दरख्त भी काट रहे हैं, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि ग्रीन इकॉनमी की गुड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। एंड दैट इज़ द रीज़न पाकिस्तान जो है वल्नरेबल 10 में आ गया, और जिसकी वजह से अभी हम ये फ्लड्स और ये सारा कुछ देख रहे हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज़ रियलाइजेशन इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड कम्स द पॉलिसी। पॉलिसी में भी हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, और ये रियलाइजेशन अभी तकरीबन आई वुड से कि 3 से 4 साल पहले इस पर काफ़ी काम शुरू हुआ। दैट इज़ द रीज़न नाउ वी आर कमिंग अप विद द नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी फॉर नेक्स्ट अबाउट 15 ईयर्स, जबकि हमारा ये कहना था कि इसको आप 30 साल के लिए बनाएं। चलो, नथिंग बैड, एटलीस्ट 15 साल की तो आ रही है। पहले ये 2-2, 3-3 साल का काम चल रहा था। तो ये है फिशरी की पॉलिसी इज़ इन द मेकिंग, एक्वाकल्चर पॉलिसी ऑलरेडी इज़ आउट, और इस तरीके से ये चीज़ें अब स्टार्ट हो गई हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट 5 years वी आर गोइंग टू सी अ गुड चेंज इन आवर पॉलिसीज़, और मैरीटाइम इकॉनमी विल गेट, या ब्लू इकॉनमी विल गेट इट्स ड्यू प्लेस। ये मेजर इम्पेडिमेंट्स तो ये हैं। तो जब आपने पॉलिसीज़ बना ली, गवर्नमेंट के काम सिर्फ 4 हैं: पॉलिसी बनाना, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वायरमेंट, एंड लास्ट इज इंस्टीट्यूशनल टू मॉनिटर एंड प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मॉनिटरिंग बॉडीज़। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है। जो नहीं है वो है गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई भी है। तो बहरहाल कहने की बात ये है कि ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा ये सेक्टर बहुत पीछे चला गया। ठीक है जी, यहाँ से किसी का सवाल था फ्रंट से आपके, somebody was asking for, जी आप बेटा। Sir, my question is that throughout Pakistan we are seeing that the industrial waste is being thrown into our rivers and that is ending in our sea. So how does it affect our economy, maritime economy, and at the end our national security and other things? And what are we doing in response to that? Apart from just the policies, are we doing any projects specifically in that regard? Very good question. Very good question. You are linking the pollution to the national security. This is the kind of awareness which I am looking forward to. तो इसमें ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि फ्लुएंट सारे जो अनट्रीटेड सी की तरफ जा रहे हैं, और दिस इज़ अगेंस्ट द ग्रीन प्रैक्टिसेस एज वेल एज द ब्लू प्रैक्टिसेस। उसका नुकसान क्या है कि इस वक्त गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड से लेके नीचे मारमा गोवा जो इंडिया की पोर्ट है, वहाँ तक दिस ऑल एरिया इज़ मार्क्ड एज ए ब्लैक एरिया, ऑयल स्लिक। और इसके अंदर आपकी और वो ऑयल स्लिक इतनी बड़ी हो गई, तकरीबन 8 फीट की हो चुकी है। एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि इसके नीचे जितनी बायोडाइवर्सिटी वो डेड हो गई है, फिश इज़ नॉट देयर। So you have to go out to do the fishing. जब आपकी तरह मैंने कैडेट कॉलेज ज्वाइन किया GCC और उसके बाद नेवी, तो we used to see dolphins and fish in our harbor, और वहाँ पे हम लोग फिशिंग भी करते थे। इस वक्त तकरीबन आपको कुछ नहीं तो 3-4 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता, बिकॉज दिस ऑयल स्लिक इज़ ट्रैवलिंग राइट अलॉन्ग योर कोस्ट। ये वो चीज़ है जिस पे कि हम दोनों को मिल के काम करना है, विच इज़
इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें कोई डिवाइड नहीं, नुकसान दोनों का होगा। सो दैट इज द थिंग वी कीप टॉकिंग ऑन दिस इशू। इसके ऊपर स्पार्को के साथ मिलके अभी काम शुरू हुआ है कि पहले इसको मॉनिटर किया जाए और उसके साथ जो इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म है, बिकॉज दोज आर वीक। जो इंडस्ट्री लग रही है, हर इंडस्ट्री के रूल्स में ये चीज़ दी हुई है कि उनका कोई भी अनट्रीटेड फ्लुएंट जो है वो नदी में नहीं जाएगा और आगे नालों में नहीं जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे मैकेनिज़म्स वीक हैं तो उस वजह से इसमें ये सुकम है, उसमें ये वीकनेस है। तो उस पर वी आर ट्राइंग टू create more awareness with international partners. We are coming up with a big conference, I think in next month or next to next month, in which we are taking all the stakeholders, including the Mayor Karachi and the industry, to look into this. And there are बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जो उसको हेल्प आउट करेंगी। इसी तरीके से साल के आखिर में जो पाकिस्तान एक पाइमेक 25 एक है जो बहुत बड़ी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कहलाती है पाकिस्तान की, विच इज़ रिलेटेड टू मैरीटाइम, विच इज़ ऑल्सो कमिंग अप। उसमें भी पूरा थीम है जिसके ऊपर ये बातचीत करेंगे। अब उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इज़ अ वीकर इंडिया, जो सबसे ज़्यादा आपके सवाल का जवाब है। और उससे सबसे ज़्यादा इन पर्सन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। If an individual of a nation gets realization और अपने घर के जो कूड़ा है उसको बाहर इस तरह नहीं फेंकते, उसको सेग्रीगेट करते हैं या उसको तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो पहली ईंट तो यहीं से शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों को थोड़ा सा इस पर रियलाइज़ करवाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जी आप प्लीज़ आगे। Assalamualaikum sir, my name is Muneeb Umar from second year Janaving. Sir, you implied that government has no business in business, and as you have also told, and we have seen that the flagship company of the government of Pakistan has been largely inefficient state companies, and there has this shift from the 1990s of privatization and neoliberalism nationally and globally. So what are your thoughts on the idea that these state-owned enterprises in the maritime area and privatization of these flagship state companies, how would it impact? And we have seen largely that these things have resulted, especially in the power sector, in monopolies being created in Pakistan. So what are your thoughts on the idea? Thank you. Very intelligent question. अच्छा, इसमें ज़ाती ख्याल जो मैंने आपको बताया कि business has no business to do the business, तो ये तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसलिए कि this is what the good practices being done world over, ठीक है। लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चन कि और क्या बेहतर इसमें किया जाना चाहिए, तो आई थिंक स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक डिसीजन हुआ 70s में नेशनलाइजेशन का, उसके पैरामीटर्स ने बाद में ये नेट रिजल्टेंट उसका ये हुआ कि शायद वो डिसीजन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इधर से चले गए। लाइक उसमें शिपिंग कंपनीज को भी हम बात करते हैं, गूगल्स एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इस वक्त वर्ल्ड ओवर उसके शिप्स चल रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको व्हील रीइन्वेंट नहीं करना है, आपको देखना है कि अगर ये कंट्री हमारी ही तरह है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये अगर इतना आगे आ गए हैं तो इन्होंने क्या किया। आपने वो टेम्पलेट उठाना है पॉलिसीज़ का, उसको रिकैलिब्रेट करें हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से और उस पर गेट गोइंग हो जाए। दिस इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप चीज़ें अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं तो उसकी जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एरिया आई थिंक वेयर वी नीड टू वर्क इट आउट। आपको हैरत होगी कि इथोपिया, इट्स नॉट अ मैरीटाइम
कंट्री, लैंडलॉक कंट्री। आउट ऑफ 192 तकरीबन 150 के करीब जो है वो मैरीटाइम नेशंस हैं, बाकी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। बट दे हैव अ शिपिंग कंपनी और हमसे ज़्यादा शिप्स हैं। स्विट्ज़रलैंड लैंडलॉक कंट्री, 900 से ज़्यादा शिपिंग है उनका, और दुनिया का मेजर शेयर वो सी के ऊपर चला रहे हैं। इट इज़ ओनली द पॉलिटिकल माइंडसेट। उनके लीडर्स ने इसको देखा, इसके पोटेंशियल को देखा, और उन्होंने इसके ऊपर अपना इस चीज़ को इस्तेमाल किया। हमारे पास सी का प्रोविंस है, कोस्ट है, चेंज ऑफ माइंड नहीं है, उस तरफ नहीं लेके गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। पीछे से एक सवाल ले लो, फिर आपके पास आते हैं। जी, आप इस लेफ्ट साइड से ले लें, इधर से पहले भी एक आगे, यहाँ से आप पीछे, बैक बेंचर इज गुड। जी, बिल्कुल रेयर बेंच पे जो आप सवाल करना चाह रहे हैं। जी, अच्छा, टॉप गैलरी इज ऑल्सो रेजिंग हैंड। नेक्स्ट आई कम टू यू। जी जी, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट योर सेल्फ, फिर उसके बाद राइट पे आते हैं। टॉप गैलरी तो वैसे प्रिविलेज होती है, जो भी ऑन द टॉप गैलरी। Sir, my name is Daniel from Iqbal Wing, second year. Sir, my question is related to Gwadar and CPEC. How could they contribute to the economy of Pakistan, and who are the people who sabotaged that project? जब ये CPEC का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया तो ये तकरीबन 70s की बात है। इट वॉज टू बी डन बाय पाकिस्तान इटसेल्फ फॉर पाकिस्तान। लेकिन बीच में हमने एक डिसीजन किया कि चाइना का जो BRI कॉन्सेप्ट है उसके साथ इसको लिंक कर देते हैं। माई पर्सनल व्यू, विदाउट रियलाइजिंग कि जियो पॉलिटिकल इसका क्या रिएक्शन होगा। 2 लेवल्स के ऊपर हमने इसको शायद मिस आउट किया, एक तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और दूसरा है रीजनल लेवल पे, और फिर उसका ऑफशूट लोकल लेवल पे भी आ गया। तो जब ये इनिशियली बनाया गया तो उस वक्त ये कहा गया कि इसका पोटेंशियल है तकरीबन 10 बिलियन पर ईयर आपकी इकोनॉमी में ये पंप इन करेगा, और इसको एंड इट वाज सेड दैट दिस इज अ स्विस कैनाल ऑन लैंड। वाई? बिकॉज स्विस कैनाल वाज प्रोड्यूसिंग अबाउट 10 बिलियन ऑफ रेवेन्यू फॉर इजिप्ट पर ईयर। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, बट देन linkages ne, I think it had put more constraint on it than exploitation of its real potential. So international east and west का जो सिलसिला चला उसके अंदर we got entangled. Second is regional level पे ज़ाहिर है इंडिया का भी कुछ मफाद है, and then local level के जो अपने dynamics हैं, all together all three have started playing together, जिसकी वजह से security has become a major issue. But I am hopeful inshallah it is going to be sorted out. और perhaps in my personal opinion it is to be taken as one of the regional commercial port and open to all. बिकॉज इसके बाद 3-4 पोर्ट्स बन चुके हैं डीप सी, 2 ओमान की बनी, एक श्रीलंका की बनी, एक इंडिया की बन गई। उस पर कोई सवाल नहीं हुआ, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। और वो अभी सलाला जो है वो इस वक्त दुनिया की नंबर 2 पोर्ट है, और हमारे बाद शुरू किया उन्होंने। तो बहरहाल ये कुछ बड़े सवाल हैं, शायद बड़े कैनवस के ऊपर हमें देखने की ज़रूरत है कि हाउ ये जो स्ट्रेंस डिफरेंट फोर्सेस का आ गया है इसको कैसे डिस्पेल किया जाए। टॉप से एक सवाल करना, यहाँ से कर रहे थे आप बेटा, आप बताइए।
Pakistan's maritime industry has been ignored for so long, considering its immense impact in a lot of the developed countries, and considering Pakistan's geopolitical situation, which he said that maritime affairs would play a huge role. So why has it been ignored by policymakers up until now, and why right now are we starting to take that action towards it? Good. Again, my own assessment is that as the Pakistan came into being in some peculiar circumstances, whereby you must have read it, that this partition was not destined, in a way that there were a lot of opposition from that time, from Indian leadership, from within Muslim community also, and plus the masters, those who were at the helm of affairs. If you read the Cripps mission, how much they were actually opposing this. So it was only and only the Qaid-e-Azam and the Muslim League, those who were staunch supporter of that we have to go for a separate homeland. Why? Because इसके बाद जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आना था उसमें मेजॉरिटी हैड टू रूल, मेजॉरिटी हैज़ टू डू एवरीथिंग, और आज वो चीज़ें आपको उधर नज़र आती हैं, ठीक है। तो वो जो, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि देयर वाज अ कंटिन्यूअस सिक्योरिटी प्रॉब्लम विच वाज पोज्ड ऑन पाकिस्तान, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग military to look after and respond to these threats. तो हमारा जो bent of mind from the beginning है वो security हो गया, और ज़ाहिर है जब आपके पास security और उसका जो major share है या उसका जो policy है it was towards land, तो उस हवाले से हमारी total focus और चीज़ें जो सारी land की तरफ हो गई। लेकिन having said that, बाद में अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अब चूँकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नज़र भी आना शुरू हो गया कि इकॉनमी को अगर आपने नहीं सपोर्ट किया और उस लेवल पे लाए कि जहाँ पे वी हैव अ रिस्पेक्टेबल योर ओवरऑल जीडीपी टू डेट रेशो जो कहा जाता है, उसमें हम जब तक इससे नहीं निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सो इफ आवर कंट्री इज 5th इन पॉपुलेशन, देन व्हाई नॉट 5th इन जीडीपी? गलत हो रहा ना? तो ह्यूमन रिसोर्स हमारी बहुत अच्छी है, ये सब काम कर सकती है। सिर्फ वो जो इकबाल ने कहा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। जी, यानी जी यू हैड, जी आप प्लीज़ सवाल करें। राइट वाले प्लीज़, ही हैज़ बीन रेजिंग हैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Assalamu alaikum sir, my name is Abdul Arif from Jinawing 10th. So I have a question about Pakistan Navy, a bit off from topic. So I wanted to ask that why don't Pakistan Navy has a aircraft carrier yet? Are we planning to build or buy one in future? And how much strong our Navy, Pak Navy will be if we have a single aircraft carrier? Thank you. देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर या जो भी वेग बनानी है आपने, वट एवर प्रोपोजिशन यू शुड हैव इन द एयर, लैंड और एट सी, दिस इज ड्रिवन बाय योर पॉलिसीज. सो एयरक्राफ्ट कैरियर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस अवे फ्रॉम योर कोस्ट. इफ़ यू वांट टू गो, बहुत दूर जाना है आपने जहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता, तो आप उसका, व्हाट इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर? एक रनवे है जिसके ऊपर आपके कपल ऑफ एयरक्राफ्ट्स खड़े होते हैं, अबाउट 60-70 एयरक्राफ्ट्स उस पर आ जाते हैं, ठीक है. तो आपके पास, आप उस मुल्क के करीब जाके वहाँ से उड़ा के यू कैन डू द अटैक. सो आवर पॉलिसी इज़ नॉट ऑफेंसिव. हम किसी मुल्क में जाके जहरियत नहीं करना चाहते हैं. हम अमन के दाई हैं. हम कहते हैं कि हमारे साथ अमन के साथ रहें, हम भी अमन के साथ रहना चाहते हैं. लेकिन
अगर किसी ने प्रॉब्लम किया तो फिर आप देख लें जो मार्का हक में हुआ ये होगा, ठीक है। सो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या आप ये कह लें इस वक्त ज़रूरत नहीं, बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आपने बना लिया उसको फिर प्रोटेक्ट करने का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। उसके लिए आपको SSNs होती हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन जो उसके नीचे रहती हैं वो उसको नीचे से प्रोटेक्ट करती हैं, आगे पीछे तकरीबन उसके 12-13 शिप्स लगाने पड़ते हैं। एयरक्राफ्ट्स जो हैं LRMPs हैं वो आगे सर्वेलेंस के लिए होते हैं, बिकॉज अगर ये आपने हाथी पाल लिया तो फिर आपको उतना बड़ा ख़र्चा भी करना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारी जो स्ट्रेटजी है वो उसके मुताबिक नहीं रखती, ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। सर आपकी परमिशन से एक सवाल और ले लो, बिकॉज उसके साथ एक और ही हैड रेज 2-3 टाइम्स, तो मुझे लगा कि जी सर सॉरी सो दिस इज द लास्ट will be Assalamu alaikum, sir. My name is Mohammad Asim Muin from Janaving Metric. Sir, my question from you will be that previously you had mentioned that the maritime economy, like the backbone of the country is maritime economy only if the military is strong, the defense system is strong. But now you are mentioning that our country has strong defense but our maritime economy is still weaker. So I want to know that despite having good defenses, why aren't we able to contribute to maritime economy? गुड। ये Catch-22 वाला सवाल है, ठीक है, मैं इधर जवाब दूंगा इधर से फंस जाऊंगा, इधर करूंगा तो उधर फंस जाऊंगा। लेकिन इसका जवाब ये है कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो इट वाज नॉट बिकॉज कि उसकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं थी, वो इसलिए टूटा कि उसकी इकॉनमी जो है उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। It's like if you don't have a healthy body, inside if there is God forbid कैंसर डेवलप हो जाता है तो फिर बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इकॉनमी इज़ दी बेंचमार्क, और आप कह लें कि फाउंडेशन ऑफ रेजिंग योर नेशन, और उसके ऊपर फिर आप अच्छी मिलिट्री भी रख सकते हैं, उसके ऊपर अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग यू कैन डू। बट द फाउंडेशन जो आपके पास बेस है वही अगर ठीक नहीं है तो ये चीज़ थोड़ी देर से समझ आई। तो जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी बनी 2021 में, एंड दैट इज़ द फर्स्ट पॉलिसी विच इंडिकेट्स दैट इकॉनमी इज़ सिनोनिम फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी। मतलब ये है कि ये आपकी एक ही चीज़ है, अगर अच्छी आपकी बेहतर इकॉनमी होगी तो बाकी सारे सेक्टर भी, वो डिफेंस भी आता है उसमें, बाकी सब इंटायरली वो सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब आपके पास लोन लेने के लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के पास, तो वो साथ ही साथ आपके सॉवरेनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ साथ मिल जाता है आपको। अच्छा ये आपने नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले पॉकेट ठीक होनी चाहिए और उसके लिए इकॉनमी ठीक होनी है। और इकॉनमी का बहुत बड़ा रोल, चूँकि मैंने बताया मैरिटाइम इकॉनमी का है या ब्लू इकॉनमी का है, तो उसको सामने रख के उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो अगर आपको 100 बिलियन बाय 2030 दे दे, हाफ भी दे दे, 50 बिलियन आपको दे दे, तो आप हर दफ़ा बजट बनाने के लिए जाते हैं, डेफिसिट होता है कितना, 8 बिलियन का, 10 बिलियन का। तो वी शुड बी गोइंग एज एन ऑनरेबल नेशन, वी शुड से we will reduce our expenditures and we will produce ourselves, ठीक है। Thank you. Ladies and gentlemen, boys, it has been a singular honor for us to be addressed by a professional par excellence, and that too a submariner. I wonder whether you guys are into that fiction of submarines. Have you read The Hunt for Red October by Tom Clancy? Yes or no? That's great. So this is the stuff of legends who talk to us today. And now he's serving Pakistan through his intellect
at the policy level. What you have been exposed to today is an experience which rarely anyone of your age gets. And this is a privilege, sir, for which we thank you very much, sir. The Admiral opened up our mind to a unique perspective, the 7th province of Pakistan and a glimpse of the future of Pakistan. Small little things he talked about, large things he talked about. He acknowledged that your knowledge makes you much more senior to him, but he taught us so much today, sir, that was wrong. Your experience, sir, speaks a lot, and you provided us an insight into the strategic imperatives. We learned about the ports of Pakistan and how we compare with Bangladesh and why we lag behind. We learned the meaning of the word linchpin, a bit about those environmentalists, the use of water or conservation in Islam. I'm also glad that you were introduced today that chart in which the hierarchy from the national interest down to strategy was given. This is again something which rarely happens at your age. We were opened up to blue economy research areas, and you got different ideas, because I know what is coming up ahead in your minds and what is going to be happening. Sir, if you permit, there are a lot of things which we do here. We undertake research projects, we undertake internships, we look for mentors. And if you provide, I would like to volunteer Cadet College Hassan Abdal to partner with NEMA in whatever way we can be, sir. It will be an honor for us, sir. In that, Ma'am Asma isn't here. Yeah, sorry. Ma'am Asma, projects, research, and Mr. Zia, this internship thing, this is something which we need to reach out to. We learned about the Sustainable Development Goals, which we are already studying as global citizens. We understood the importance of sea governance, and that our responsibility in in looking at things with the future in mind. My compliments, gentlemen, to all those who asked questions. As per my calculation, Jinnah Wing was first. As far as asking questions was concerned, Haider Wing was second, Iqbal Wing, my great wing, was third, and the others couldn't really ask some questions. But anyway, wonderful questions from up there, shabash. Some very, 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 very interesting questions and very pertinent insofar as they were brief, they were concise, except for one which I was writing that it is a bit longish, but the Admiral came up and said that it was a very intelligent question, and that it was. Sir, thank you so very much again. This is something which I did not really imagine the whole breadth of it, that what is going to happen, and we are again privileged. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the Admiral. Thank you very much. I think it's out of etiquette. Once the guest has said you should say something, लेकिन मैं एक दफ़ा ना एक दिल की बात ज़रूर करता हूँ, छोटी सी बात. I think that will give you some idea how to become a successful person. That is, approach to any project, anything in your life has two ways. One is the right way, and second is the easy way. But the problem is, what is right is not easy, and what is easy is not right. So आप अपने हर एक्शन को इसके साथ चलाएं तो you'll come to know where is your heading. Thank you. Where the principal will present the college crest to the chief guest. Now the Honorable Chief Guest will present a shield to the worthy principal.